Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to learn rules of English letter R. Rules of English letter R. In total, if I talk about English alphabet, so there are 26 letters. But the letter R is very important in a sense because there are two English accents. There are two types of English accents. One is rhotic, other is non-rhotic. In rhotic accent, R is pronounced, but in non-rhotic accents, R remains silent. But here we would like to talk in a sense that there are two major accents: American accent and British accent. In American accent, R is pronounced, but in British English, it remains silent in some cases. Let's see what are the rules of English letter R. अगर आपने R के रूल्स सीखने हैं कि R कहाँ पे साइलेंट रहता है, कहाँ पे बोला जाता है, तो आपने वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ रहना होगा. आपको इसके मुख्तलिफ रूल्स सिखाए जाएंगे, विद एग्जांपल्स सिखाए जाएंगे, ताकि आपको जब ये दिक्कत होती है, मुश्किल पेश आती है कि व्हेन एवर द ब्रिटिश पीपल टॉक इन इंग्लिश, जब गोरे इंग्लिश में बात करते हैं, वाई कांट वी अंडरस्टैंड देम, हम उनको क्यों नहीं समझ सकते, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. आज के इस लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि अगर आर को आपको प्रोनाउंस करना आ गया तो यूँ समझें कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 50 to 60% ब्रिटिश इंग्लिश. कि जब भी गोरे बात करेंगे तो आप उनको समझ आएंगे. कैसे कि एक आर की रूल को आपने क्या करना है, गौर से सुनना है, गौर से समझना है. ये समझ आ गया, यूँ समझें कि जब भी गोरे या इंग्लिश पीपल बात करेंगे आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर देंगे. देखिएगा रूल्स ऑफ इंग्लिश लेटर आर. अब देखें, इफ आर टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ नॉट सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. अगर आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आ जाता है, लेट्स सपोज R comes in the beginning of sentence, just like the word ran, the word read, the word reopen. These are the words. If you talk about ran, it starts with the letter R. If you talk about read, it again starts with the letter R. If you talk about reopen, it again starts with the letter R. So it means if English letter R takes place in the beginning of word, so this will be pronounced. So here we would like to say ran, read, reopen. ये था हमारा इसका पहला रूल. अब हम सीखते हैं रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 2 क्या है? If R takes place before a vowel letter, if R takes place before a vowel letter, so what will happen? If R takes place, if R comes before a vowel letter, either it will be pronounced or it will remain silent. Now learn the rule. क्या रूल है? अगर R vowel letter से पहले आ जाए तो फिर हम R को क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेड, ब्राइडल, ब्रेड, ब्राइडल, और इसके बाद एक वर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे ड्रिंक. These are the words.
which you are listening as well as watching on the whiteboard कि ब्रेड है, ब्रेड तो आपको पता ही है क्या होती है, राइट। उसके बाद ब्राइडल, ड्रिंक। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस ब्रेड, देखें आप रूल क्या है, इफ़ आर टेक्स प्लेस बिफोर अ वोवल लेटर, ई इज़ अ वोवल लेटर एंड आर इज़ बिफोर इट, सो इट मीन्स दिस आर विल बी प्रोनाउंस्ड। तो जो मतलब ये रूल होगा तो इसमें क्या होगा, आर प्रोनाउंस होगा, आर विल बी प्रोनाउंस्ड। एंड सेम इज द केस हियर, ब्राइडल, इफ यू टॉक अबाउट आई, आई इज अ वोवल लेटर, बट what happens before I there is r, so it will again will be pronounced. If you talk about drink, again there is I, before I there is r, so again it will be pronounced, right? So this is what you need to understand कि bridal, bread, drink. There are so many examples. If I talk about from, present, so these are also examples of rule number 2. अब हम सीखने जा रहे हैं रूल नंबर 3. अब रूल नंबर 3 क्या है? इफ रूल नंबर 3 क्या है? इफ आर, रूल नंबर 3 जिसको हम लिखने जा रहे हैं. अब रूल नंबर 3, व्हाट विल यू लर्न इन रूल नंबर 3? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? Right, I just tell you, if double r takes place, if double r takes place before, sorry, not before, within the word, within the word, if double r takes place within the word, just like we say tomorrow, we say sorry. So if you see these two words, if I talk about tomorrow, so double R is here. If I talk about sorry, double R is here. But the thing which you need to understand, when there is double R within the word, so one R will be spoken, one R will be pronounced, and other R will remain silent. So this R will be silent and this will be pronounced. This will be pronounced because there is a rule. If you talk about the rule, according to the rule, if consonant letter takes place after R, so R will remain silent. So it means that this R will remain silent due to this R, right? Because this is also called consonant letter, and this is what which you have to keep in your mind. And secondly, what we have learned in previous rule, we learned, हमने सीखा previous rule में कि अगर R vowel से पहले आए तो वो आर क्या हो जाएगा? बोला जाएगा. तो इट मीन्स कि टुमारो का पहला आर हमारा क्या हो गया? खामोश, साइलेंट हो गया. अब दूसरा जो आर है हमारा वो क्या है? प्रोनाउंस होगा, बोला जाएगा. अब देखते हैं कि इसको कैसे बोलते हैं हम. टुमारो, सॉरी. कभी भी आपने अपनी लाइफ में इसको टुमारो नहीं पढ़ा होगा, सॉरी नहीं पढ़ा होगा. क्यों? double R is not pronounced. One R remains silent and other is pronounced. Hope so कि आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा. अब हम मूव कर रहे हैं रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है. अगर ये रूल आपको समझ आ गया तो यूँ समझें कि आप आर को समझ गए. अब देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है. इफ आर टेक्स प्लेस, इफ आर टेक्स प्लेस बिफोर a consonant letter, if R takes place before
a consonant letter. So what will happen? Will it remain silent or will it be pronounced? See, I just tell you, if R takes place before a consonant letter, so it will remain silent. It will remain silent. How? See the examples. If I say park, if I say car, right? These are just two examples. One more I just give you, that is garden, right? So if I talk about park, car, garden, so here if you see, this is R and K is consonant letter. So if R takes place before a consonant letter, so it will remain silent. It will remain silent. See, park, नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको जो प्रोनाउंस करते हैं हम कहते हैं पार्क. इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ पार्क, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश it is not park, neither it is park, no, neither it is park, neither it is park. It is pronounced in British English as park, P-A-R-K, park. So most of the time what happens that we say we visited this park. So if any British comes here, talks in English, if he uses the word park, so sometimes we get confused about which park he's talking. Later on we come to know that if R takes place before consonant letter, it remains silent, so it will be pronounced as park, right? This is what which you have to keep in your mind. After that, car, we say normally car. So if any person questions you, where is your car? Where is your car? We say, what is being said to us? हमें क्या कहा जा रहा है? Where is your car? Later on we come to know that car. So in British English what happens? So this word car is not pronounced. I mean this word car is, if R is in the end, so it is not pronounced. Okay, I was talking about the car, but car here does not suit. So here I can write here another word, that is dark, D-A-R-K, dark. So I can also write the word first, right? So these are the words you have to keep in your mind in order to make the word R, make the letter R silent. आपने R को क्या करना होगा? Silent करना होगा. कैसे? If you talk about this R, again there is consonant letter after R. So this R will remain silent. We would say it as dark, right? And after that, if you talk about the first, so this R remains silent due to this consonant letter. So first, after that, if I talk about this word garden, there is R, right after R there is consonant letter D. So again it will be pronounced as garden, right? So these are the words which you have to keep in your mind in order to understand how to make the letter R silent if this rule is applied. Again I repeat it, if R takes place before a consonant letter, so this R will remain silent. If you talk about this R, there is K right after it. If you talk about this R, again there is K after R. If you talk about this, again there is D after R. So again the same case is here. So it means that this R will remain silent. Park, I am going to park, right? So my car is in the parking. My car is in the parking. So it means R will remain silent because there is consonant letter after R. Hope so आप ये रूल भी समझ गए होंगे. ओके, अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? रूल नंबर 5.
अब रूल नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि इफ़ देयर इज अ सिंगल वर्ड, सेपरेट वर्ड, एलोन वर्ड, अकेला वर्ड है कि फर्ज करें उसके एंड पर, उसके ऊपर एंड पर, इफ़ देयर इज अ सिंगल वर्ड, इफ़ देयर इज अ single word or alone word, single or alone word are separate. So what will happen if there is a single word or alone word? What happens if in the end of that particular word R takes place, but before that R, if there is vowel, will that R remain silent or will that be spoken? Let's see what happens. If there is a word water, if there is a word car, if there is a word river, right? So if you talk about these three words, water, car, river, water, car, river, in American English, what happens? These all are pronounced. Either they take in the beginning or in the end, but there is no change. But in British English, what happens? This R remains silent. Number one, it takes place in the end of the word. Number two, if there is vowel letter before R, so that R will remain silent. How these words are pronounced? Water, car. This is called water. Please bring me a glass of water. Right? After that, car. This is my car. Right? And after that, river. So river. So these are the words. If you talk about this word, this word, this word, as we have said, if there is a single word, if there is a single word, so what happens? If R takes place in the end, if R takes place in the end, so before that R, if there is vowel, so that R will remain silent. So this will be pronounced as water, car, river. So I hope that you have understood this rule as well. Okay, now we are going to talk about rule number 6. Rule number 6 is very important. How? Let's suppose I just write here examples, and after that I will be able to understand you how do you have to get it. I will be able to make you understand how do you have to understand. See here, number one, if I write here water is cold, water is cold. If I write here his car ran out of gas, his car ran out of gas. Water is cold. देखें यहाँ पे R है और यहाँ पे भी देखें क्या है, R है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोवल है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है. अब हमें देखना है कि हमने ये रूल पढ़ा पिछली स्लाइड में, पिछले मतलब रूल में, कि अगर एंड सिंगल वर्ड हो उसके आखिर में क्या आ जाए, आर आ जाए, तो वो आर साइलेंट होगा. लेकिन जब ये कनेक्टेड स्पीच से मुराद क्या है, इसको लिंकिंग आर कहा जाता है. कनेक्टेड स्पीच इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं, लिंकिंग आर. जब लिंकिंग आर हो तो फिर रूल हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. अब देखते हैं कैसे चेंज होता है. वाटर इज़ कोल्ड, आपने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वाटर एंड पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है. लेकिन इससे जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से. अगर आर किसी वर्ड के एंड पे हो और उससे आगे आने वाला वर्ड वोवल लेटर से स्टार्ट हो, तो इस आर को हम क्या करेंगे, बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. राइट, इस आर को हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. इसी तरह हिज कार रैन आउट ऑफ गैस, जब हम कहते हैं हिज कार रैन आउट ऑफ गैस, ये भी आर है और ये कॉन्सोनेंट लेटर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, इनके अगर एक वर्ड है कार, आखिर में आर आ रहा है, और इसके बाद वाला जो वर्ड है वो अगर शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से,
तो फिर क्या करेंगे, हम इस आर को खामोश कर देंगे। ये आर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्यों, ये सेंटेंसेस के अंदर आ रहे हैं या फ्रेजेस के अंदर आ रहे हैं, कनेक्टेड स्पीच के अंदर आ रहे हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर ये चीज़ें आएँ तो फिर हमें देखना ये होगा कि अगर इस आर के बाद वोवल है तो फिर ये आर बोला जाएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट वर्ड का इनिशियल लेटर, बिगिनिंग लेटर देखना होता है। और फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, साइलेंट, आर साइलेंट हुआ। क्यों कि नेक्स्ट वर्ड जो शुरू हो रहा था वो कंसोनेंट लेटर से था। आई होप कि जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि ये जितने भी रूल्स हैं इनके पॉइंट्स यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे देखें कि रूल्स ऑफ इंग्लिश लेटर आर, इनको आखिर में लिखने का मकसद ये है कि ताकि आपको जब भी ये पूरा लेक्चर सुने, मैं भी एक दफ़ा सुनने से आपको समझ ना आए, और जब आप एंड पे आखिर पे जब पहुंच जाते हैं तो उसमें एक दफ़ा फिर इसका मैं क्या दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें, इफ़ आर इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, अगर आर वर्ड के शुरू में आ जाता है तो ये आर प्रोनाउंस होगा। इसकी एग्जांपल्स मैंने दी थी, रैन, रेड, राइट, रीओपन एट्सेट्रा। आफ्टर दैट इफ़ आर बिफोर अ वोवल लेटर, अगर आर वोवल लेटर से पहले आ जाता है तो ये आर क्या होगा, बोला जाएगा। इसकी मिसाल क्या थी, ब्रेड, ब्रिंग एट्सेट्रा। आफ्टर दैट इफ़ डबल आर आ जाता है एक विद इन अ वर्ड, वर्ड के अंदर, तो फिर क्या होगा, एक आर जो होगा पहला वो साइलेंट होगा और दूसरे आर को हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। उसके बाद देखें आप, इफ़ आर टेक्स प्लेस बिफोर अ कंसोनेंट लेटर, अगर आर कंसोनेंट लेटर से पहले आ जाता है तो दैट आर विल रिमेन साइलेंट, वो आर क्या होगा, साइलेंट होगा। क्यों कि वो आर कंसोनेंट लेटर से पहले आ रहा है। उसके बाद देखें रूल नंबर 5, इफ़ आर इन द एंड ऑफ द वर्ड, अगर आर एक सिंगल वर्ड है, सेपरेट वर्ड है, अकेला वर्ड है, उसके आखिर में आ जाता है, मिसाल के तौर पर कार, उसके बाद वाटर, ये वो मिसालें हैं। अगर आप इनको देखें तो आखिर में आर आ रहा है, तो इसी तरह कार जो होगा वो क्या हो जाएगा, खा। इसी तरह दूसरी मिसाल जो दी है मैंने आपको वो कौन सी है, रिवर, रिवर, और उसके बाद जो मैंने कहा है वाटर। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। उसके बाद मूव करता हूँ लिंकिंग आर की तरफ। ये कनेक्टेड स्पीच में, रैपिड स्पीच में ये यूज़ होता है। जब फर्ज करें आर सेंटेंस के अंदर, फ्रेज के अंदर आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जहाँ पर आर आ रहा है, वोटर का आर है, तो हमने अगला लफ्ज़ देखना है। अगर वो वोवल से है तो ये आर प्रोनाउंस होगा, और अगर वो आर एंड हो रहा है लेकिन उसका नेक्स्ट जो वर्ड है, आने वाला वर्ड, अगर वो शुरू हो रहा है किससे, आर से, तो वो आर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्यों, रूल ये है कि आर बिफोर वोवल बोला जाएगा, आर बिफोर कंसोनेंट खामोश रहेगा। इसी के साथ आज के लेक्चर तक यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आप एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि अगर आप रियल सेंस में कुछ सीखना चाहते हैं, यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल SSE विद मज़र। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आ जाए तो आप बेल आइकन में जाके नोटिफिकेशंस को अलाउ करके ऑल पे क्लिक कर देना, और उम्मीद है इससे आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मौसूल हो जाएंगे। और अगर आप रियल सेंस में आर का रूल सीखना चाहते हैं, आप सीखें, सुने और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। कोई चीज़ पूछनी हो वहाँ पे पूछें ताकि आपके कमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए एक नई वीडियो के साथ। अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।